Hello students, today we will read about the causes of poverty. This is the chapter number 3, Poverty as a Challenge, and page number 38 of your economics book. There were a number of causes for the widespread poverty in India. One historical reason in the low level of economic development under the British colonial administration. The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textile. The low rate of growth persisted until the 1980s. This resulted in less job opportunities and low growth rate of the income. This was accompanied by a high growth rate of population. The two combined to make the growth rate of per capita income very low. The failure at both the fronts, promotion of economic growth and population control, perpetuated the cycle of poverty. With the spread of irrigation and the Green Revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effects were limited to some parts of India. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले देखा जाए कि पावर्टी हमारे भारत में किस तरह से फैली, कितने ज़्यादा कैसे फैल गई। तो सबसे एक हिस्टोरिकल रीज़न तो ये है कि जब ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन था तो उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बुरी तरह से तोड़ दिया था। हमारी इंडस्ट्रीज़ को डाउन करने के लिए यहाँ से लो रेट पर चीज़ों को लेना शुरू कर दिया और बाहर यूरोप ये कंट्रीज़ में ले जा कर के उन्हें हाई रेट पर बेचना शुरू कर दिया। और इसके लिए यह हो गया कि कम से कम प्रोडक्शन यहाँ पर जो लोग थे वो करने लगे, क्योंकि उन्हें उतना प्राइस नहीं मिलता था। इस तरह से धीरे धीरे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी कमर टूट गई और जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो हमारी डाउन हो गई और उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन कंट्रोल था वो नहीं हो पाया। तो हमारा जो देश है वो गरीबी के गर्त में जाता चला गया। With the spread of irrigation and the Green Revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effects were limited to some parts of India. The industries, both in the public and private sector, did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers. Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc. With irregular small incomes, these people could not afford expensive housing. They started living in slums on the outskirts of the cities, and the problem of poverty, largely a rural phenomenon, also became the feature of the urban sector. इरिगेशन के स्प्रेड से और ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्प्रेड से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ भी आई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने भी बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड की, लेकिन वह भी जो जॉब ढूंढने वाले थे उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। अब जब सिटीज़ में जॉब नहीं मिल पाई तो लोगों ने फिर रिक्शा पुलिंग करना शुरू कर दिया, वेंडर्स बन गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन गए, डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए, ये सारे काम उन्होंने ले लिए। इसके बाद उनकी जो अर्निंग थी वो पर्याप्त नहीं थी, तो फिर उन्हें स्लम एरियाज़ में रहना पड़ा और इस तरह से जो पॉवर्टी का फिनोमेना था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। Another feature of high poverty rates has been the huge income inequality. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resources. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy initiatives like land reform, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly and effectively by most of the state governments, since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India. Proper implementation of policy could have improved the life of the millions of rural poor. अब गरीबी को और बढ़ाने के लिए, गरीबी रेट को और बढ़ाने के लिए एक और जो था वो है इनइक्वालिटी ऑफ द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास बहुत कम ज़मीन थी। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आई, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ बने जिन्होंने जो कि इस पॉवर्टी को कम ना करके और बढ़ाते गए।
गरीबी को कम करने के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, उसे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया गया कि सभी को इक्वल प्रॉपरली उनको इतना कम से कम ज़मीन लैंड मिल सके ताकि वो अपने जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पूरा कर सकें। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये इफ़ेक्टिवली इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, इफ़ेक्टिवली काम नहीं किया गया और इस तरह से लैंड रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो गरीबी थी वो भारत में बढ़ गई, एक मेजर कारण वो बन गया। शायद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यदि हो जाता लैंड का, ये पॉलिसी अगर काम कर जाती, सही से इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाता, तो जो मिलियंस ऑफ पीपल थे, रूरल पुअर थे, वो शायद उनकी लाइफ ठीक हो सकती थी। Many other socio-cultural and economic factors also are responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money, or small farmers need money to buy agriculture inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow, unable to repay because of poverty. They become victims of indebtedness. So the high level of indebtedness is both the cause and effect of poverty. हमारे देश की गरीबी को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि सोशियो कल्चरल जो एक फैक्टर हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे थे वो रिलीजियस सेरेमनीज़ में और भी मैरिजेस में, इन सब में बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे और इसके बाद उनको देखकर ये एक ट्रेंड ही बन गया कि इसमें इतना खर्च, किसी मैरिज सेरेमनी है या किसी की डेथ सेरेमनी, तो उसमें इतना खर्च करना ही है। और यह करने के लिए जो पुअर लोग थे वह कर्ज लेने लगे, अपनी ज़मीनों को गिरवी रखने लगे, उधार लेने लगे और फिर गरीबी की वजह से, ना चुकाने की वजह से वो लैंडलेस होते गए। तो ये जो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स थे ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हमारे देश की गरीबी को बढ़ाने में।